इस वीडियो में फिर से नमस्कार। As we are discussing about the pedagogical aspect of teacher development, we will discuss today the integration of themes from different subjects and effective cross-curricular teaching. So we need certain amount of integration in each and every discipline when the learning is becoming more and more complex and challenging. So to achieve the goal in better way, we need examples from other disciplines when we are teaching the particular discipline, any particular discipline. So for example, in education also, philosophy, sociology and psychology are the major subjects which are related and part of our education discipline, which makes the education interdisciplinary. So this interdisciplinary approach is making education better, and not only these three subjects but economics of education, management of education, and other areas related to character education, moral development, maybe other discipline also. Then the technology related engineering part is also related. Mathematical skills is also part of this the quantitative research in education. So many disciplines are needed to make the education an enriched discipline, and which can serve better to the learners of education. So for effective learning in any discipline, we need that type of integration, and this approach is very much common for the science, technology, mathematics, engineering, and arts also. Even the humanities subject can be related to the social science, arts, and also to the science to achieve the purpose of education and to realize the goals effectively. For example, when the children are learning about any story of English literature, then the story has a lesson at the end of that story, and that lesson is related to the society, and so that should be connected to the person, to the society, and to the context, to the and maybe it's relevant to the present context when the teacher is teaching that story and explaining that story in the classroom. So so this integration is needed to make the learner a better citizen also. Like when we are working on a theme to make this to develop a learner as a better citizen, then we need to integrate everything, every discipline from the citizenship education also. So there are so many pros and cons, there are so many objectives can be formulated based on the central theme of your teaching, and that central theme is maybe related, maybe extended to the different themes and to the different
themes of the subjects. So for example, when we are talking about the story, then if a character is playing a role like this of the story, that he is helping someone else, and that help, through that support, another character is becoming successful in the field, in the concerned field he or she is dealing with. So when you are extending that thing from the today's condition, that supporting to the disadvantaged group, even at the problematic period, that support is needed more from the affluent people, and when they are getting that type of support, they can excel themselves. तो ये सारी जो सुविधाएं, जो बातें चलती हैं कि हम लोग कोई स्टोरी को डील करते समय, कोई कहानी को बताते समय, हर पात्र का परिचय देते हुए कहते हैं कि वो इस तरह के कार्य कर रहा है, तो समाज में इस तरह का कार्य किया जा सकता है। फिर हम उसको बात करते हैं कि आज समाज की स्थिति क्या है, आज कैसा दौर चल रहा है, कैसा इस स्थिति में कौन से ऐसे लोग हैं जो वंचित ग्रुप हैं, उनको कैसे मदद की जा सकती है, इसको तो जोड़ते ही हैं। फिर हम अपने भारत देश की प्रजातंत्र की व्यवस्था की बात कर सकते हैं, लोगों की ज़रूरतों की बात करते हुए उसे अपने गवर्नेंस से जोड़ सकते हैं। तो सोशल साइंस के बहुत सारे एस्पेक्ट हमारे उस स्टोरी से डील हो सकते हैं। फिर हम उसको और एक्सटेंड करते हुए उनको और उनके स्किल को बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि आप ड्रॉ कीजिए, उस तरह के ड्राइंग को दिखाइए जो कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि वो सोसाइटी के लिए वो कैरेक्टर ज़्यादा यूज़फुल है, और उसे अपने ड्राइंग के माध्यम से बताइए वैसे कैरेक्टर को। तो इस तरह के काम जब हम बच्चों को देते हैं तो कई सारी स्किल एक साथ जुड़ जाते हैं, वो डेवलप भी होते हैं, फिर उनमें उस तरह के आइडियाज़ भी जनरेट होते हैं जो दूसरे डिसिप्लिन के तहत हम जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग की आज ज़रूरत है कि हम किसी भी बात को, किसी भी पढ़ाई को, किसी भी सब्जेक्ट के थीम को दूसरे सब्जेक्ट के थीम के साथ इंटर रिलेट कर सकें। अगर हम साइंस में ही देखें तो साइंस में अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो कि आप ये देखो कि कैसे किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, क्या क्या उनमें अलग अलग तरह के गुण होते हैं, फिर उसको आप कलर से, साइज से, शेप से, ड्राइंग के माध्यम से अलग अलग कॉलम बनाने को कहते हैं। फिर उनका वेट, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से उनको बताने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें वो काम दिया जा सकता है कि वो विजुअल इमेज या फिर उन चीज़ों का कुछ इस तरह से ड्रॉ करे कि वो एक दूसरे से रिलेट करके नज़र आए। तो एक तरह से उनको जोड़ना, या उनको अगर हम लोग कहते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी आधार पर, वेट के आधार पे या उनके शेप के आधार पे आपको जो लगता है वैसे करिए, साइज के आधार पे करिए। तो साइज और वेट के आधार पे तो आराम से हो सकता है। फिर उनके अनुसार कौन से शेप जो हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करते हैं, ऐसे कुछ जो हम लोग बढ़ा सकते हैं उनके उसकी इंजीनियरिंग स्किल को भी इसमें से, कि वो इंजीनियरिंग वाला जो इनपुट होता है जिसमें कोई मॉडल तैयार किया जा सकता है, वहाँ तक वो बढ़ सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, फिर उसके बाद उनसे मॉडल बनवाया जा सकता है, कौन सा शेप, कौन सा साइज उसमें फिट हो सकता है। तो ये एक एक्सटेंशन उनको और बेहतर तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का यूज करना हम सिखा सकते हैं। डिजिटल शेप को सहारा लेके हम देख सकते हैं कि मॉडल क्या होते हैं, उनको डिजिटली वो प्रेजेंट किया जा सकता है,
और उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो बेटर से बेटर मॉडल दिए गए अपने एलिमेंट्स को, जिसको वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अलग कर रहे थे, उसी पे वो इंजीनियरिंग का मॉडल भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्रॉस करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको ही कैसे पढ़ाया जाए, कैसे एक टीचर को डेवलप किया जाए कि वो क्रॉस करिकुलर जो टीचिंग है उसमें बहुत ही प्रभावी नज़र आए और वो गोल को अचीव कर सके जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ जाए। उसी तरह सेंट्रल थीम एक बनाकर हम लोग काम कर सकते हैं, तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है कि हम लोग एक सेंट्रल थीम बना लिए कि आपको ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पीएचडी की जो जिस तरह से बनी है उसमें कैरेक्टर डेवलप करना है, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट में कैरेक्टर के इनपुट्स डालने हैं। उनको डालने से पहले सेंट्रल थीम है हमारा टू डेवलप द कैरेक्टर। तो मॉरल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट में ऐसा फ्यूज़न हो जाना चाहिए कि वहाँ से मॉरलिटी निकले और कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए। इसके लिए मेथड जो मल्टीकल्चरल मेथड मैंने अपनाया, तो वो मेथड और पेडागोजी पे काम किया कि कौन से मेथड से हम पढ़ाएंगे कि साइंस में भी या आर्ट्स में भी या किसी भी सब्जेक्ट में कैरेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। तो ये पेडागोजी पे काम हुआ, क्योंकि मल्टीकल्चरल टीचिंग के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरफेस तैयार करते हैं जो कैरेक्टर एजुकेशन के साथ। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन और कैरेक्टर एजुकेशन का इंटरफेस ये बताता है कि आप एक ऐसा प्लान तैयार कर सकते हैं, इस मेथोडोलॉजी पे काम करके आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। सेंट्रल थीम एक बना ले तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो सकता है कि हम बाकी सारी चीज़ों को, जो ऑब्जेक्टिव मेरे जो सेंट्रल थीम को पूरा करने वाले जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो रिलेटेड थीम्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के भी हैं, फिर हमारा जो मेथड है उसके जो थीम है, उन सब से रिलेशन स्थापित करके मेन फोकस हमारा सेंट्रल थीम होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत हम ये काम कर सकते हैं। फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है कि जब हम किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे एजुकेशन की बात हम कर रहे थे, एक सब्जेक्ट हम ले लें और बाकी सारे सब्जेक्ट को जो इनपुट है, जो मेन इन डेप्थ में जाके उन सब्जेक्ट का गहराई से उनका विश्लेषण होगा। ऐसा नहीं कि कुछ सुपरफिशियली ले लिए, उन सब्जेक्ट का जो मेन जो मूल बिंदु हैं उनको हम अपने सब्जेक्ट को समृद्ध करने के लिए, एनरिच करने के लिए अगर प्रयोग करते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का हम एक तरह से उदाहरण बनते हैं अपने क्लासरूम में। तो ये टीचर कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे क्रॉस करिकुलर टीचिंग के या इंटीग्रेशन ऑफ थीम्स के, इसके तहत काम किया जा सकता है। तो उसके लिए उनको पहले तो अगर सेंट्रल थीम बताना है, तो सबके जो रिलेटेड थीम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिससे इंटीग्रेट करने से सेंट्रल थीम निकल सकता है। सो to integrate all the related themes from the different subjects, different disciplines, different areas, you have to identify them which are related to the central theme. Then the cross-curricular questions should be identified that can be solved after this planning of the cross-curricular teaching. So the objective means जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जोड़ रही हैं और उनका क्या उद्देश्य, क्योंकि कोई भी फ्यूज़न या इंटीग्रेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, तो वो जो इंटीग्रेशन है या क्रॉस करिकुलर क्वेश्चन है उसको भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिससे लगे कि वो इसका आंसर ये हो कि वो इंटीग्रेशन या वो क्रॉस करिकुलर टीचिंग वास्तव में मीनिंगफुल है। तो इसके लिए उनका पूरी तरह से इंटीग्रेशन के लिए हमको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो क्रॉस करिकुलर क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं। फिर हम असेसमेंट भी कर पाएँ। ऐसा ना हो
कि हम सिर्फ बनाएं और इसमें क्रॉस करिकुलर इनपुट हमारे इवैल्यूएशन या असेसमेंट में ना आ पाए। वो जो हमने करिकुलम को इंटीग्रेट किया है उसको असेस भी कर पाए, ये भी हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। फिर हम इसको कर सकते हैं कि अगर हमारे लेसन्स जो हैं उनको हम कंबाइन कर दें, कि जो लेसन एक दूसरे से मिल रहे हैं और उन लेसन्स का कहीं ना कहीं इनपुट है, तो दो लेसन को कंबाइन करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, जिससे जिससे इंटीग्रेशन या जो सेंट्रल थीम है उसको हम लोग सेंट्रल थीम के गोल को रियलाइज कर सकें। और इसलिए जितने भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है या हम लोगों को जो इश्यूज डील करने हैं उन सारे मुद्दों पे हम हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं जब हम कंबाइन या इस तरह के फ्यूजन करते हैं कि जब लेसन को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है दो लेसन को एक साथ। जैसे अगर हम लोग जोड़ते हैं केमिस्ट्री में एटम बम की बात हो और फिर सोशल साइंस में वर्ल्ड वार 2 की बात हो, तो एटम बम बनाने की बात को, एटम बम से रिलेटेड जो बातें हैं वो केमिस्ट्री के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये फ्यूजन जब वर्ल्ड वार 2 के सोशल साइंस से हो जाएगा तो एटम बम का जो इफेक्ट पड़ा, जो प्रभाव पड़ा और जिसका सोसाइटी पे जो दूरगामी असर हुआ और उसने जो हानि पहुंचाया उसको भी समझना, एटम बम के टेक्नोलॉजी के साथ एटम बम के जो जैसे बना था उन सारे सिद्धांतों के साथ उसको भी समझना बहुत, जो प्रिंसिपल बिहाइंड दैट प्रिंसिपल यू आर taking in chemistry about the atom bomb and what is the main basis that lead to that atom bomb and hydrogen bomb can be discussed with the harsh effect of science on society। तो ये फ्यूजन, ये एक तरह से लेसन का दो लेसन अलग अलग है, उनका एक फ्यूजन जरूरी है अगर हम बेटर लर्नर चाहते हैं अपने अगली पीढ़ी में। फिर वो कंट्रोल इसमें मायने रखता है कि हम ऐसा ना हो कि किसी एक मुद्दे पे स्टिक कर जाएं, केवल हम एटम बम के बारे में ही सारा सिद्धांत के बारे में ही अपना सब कुछ खत्म न कर दें, क्लास खत्म ना हो जाए और कहीं ना कहीं हम इनजस्टिस कर दें। वो बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन रिक्वायर होती है जब हम बात करते हैं कि टीचर का जो किस तरह से भी कोई भी जैसे किसी प्रोजेक्ट पे जो काम कराता है वो, तो प्रोजेक्ट लर्निंग सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है इंटीग्रेशन का, कि कोई भी प्रोजेक्ट फुलफिल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के थीम्स और पॉइंट्स को देखने पड़ते हैं। खासकर स्टीम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, साइंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग, मैथ, या फिर स्टीम से रिलेटेड जो साइंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ, तो ये अगर बात करेंगे तो 4 या 5 जो फ्यूजन है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आज के दौर में क्रॉस करिकुलर टीचिंग की, जिसकी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी करता है। तो हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो इंटीग्रेशन एक टीचर जो है वो रियलाइज कर सकता है और उन फोर्सेस को पहचानने की जरूरत है प्रोजेक्ट को देते समय, एक कैसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट के इनपुट इसमें जोड़कर स्टूडेंट को और ज्यादा, लर्नर को और ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं और वो उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं कि वो कल जाके कोई भी रिजल्ट दे सकता है और एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर इस तरह के इंटीग्रेशन और क्रॉस करिकुलर टीचिंग को प्रभावी ढंग से हम करें और साफ तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट दें जिसमें उस तरह के मॉडल की जरूरत होगी। फिर आर्ट्स में कई लोगों से जरूरत होगी बात करने की, ड्राइंग की जरूरत हो सकती है,
साइंस के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसकी ज़रूरत हो सकती है। फिर वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जिसमें वो जैसे गूगल मीट है या फिर गूगल डॉक्स है, क्विज है, इसका भी सहारा लेके अपने ग्रुप के लोगों से जुड़ सकता है। ऐसे टेक्नोलॉजी का उसको जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाने चाहिए जिसमें वो सारे सब्जेक्ट या थीम्स जो है varied themes, number of themes can be integrated and number of activities of different subject can be integrated। तो ये करिकुलम सबका अलग अलग काम, सबका अलग अलग थीम, सबका अलग अलग, लेकिन एक प्रोजेक्ट को करने में सबका जो इंटीग्रेशन होगा वो बेहतर रिजल्ट देगा और वो स्किल्ड बनाएगा। एक सही मायने में कुशल जो लर्नर होगा, जो इफेक्टिव लर्नर होगा, वो इसी के फलस्वरूप निकल सकता है। वो इंटीग्रेशन चाहिए। फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्लासेस को कंबाइंड करना एक हमारा हो सकता है कि हम साइंस क्लास, आर्ट्स क्लास कंबाइंड करके एक बार लोगों के व्यूज, लर्नर के आपस में कोलैबोरेशन करा दे, कोलैबोरेटिव मेथड को अपना ले। टीचर्स टीम टीचिंग कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो टीचर एक साथ पढ़ाएं और साइंस और आर्ट्स में एक प्लानिंग के साथ वो अपने क्लासेस कंडक्ट करें। तो ऐसे अप्रोच जो होते हैं वो जाहिर है कि इंटीग्रेशन या क्रॉस करिकुलर टीचिंग के गोल को रियलाइज करते हैं और इफेक्टिव क्रॉस करिकुलर टीचिंग के फलस्वरूप टीचर्स को ये उस तरह के स्ट्रेंथ देते हैं जिससे वो बेहतर टीचर बन सकते हैं और समाज को कहीं बेहतर आउटकम दे सकते हैं अपने टीचिंग के फलस्वरूप। धन्यवाद।